بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یوکرین کے 4 علاقوں کو کل رشیا میں شامل کیا جائے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے دی پابندیوں کی دھمکی۔ گیس پائپ لائن لیک کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے، رشیا نے لگایا الزام، کہا عالمی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عراق کے کردستان میں ریولیوشنری گارڈز کے حملے، ایرانی عہدیداروں نے فائز رفسنجانی کو گرفتار کر لیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ نئے صدر کو چننے میں ناکام، اسپیکر نے کہا اتفاق رائے کے بعد ایک اور سیشن بلایا جائے گا۔ فلوریڈا میں طوفان ایان سے زبردست تباہی، 10 لاکھ لوگ بجلی سے محروم، جارجیا اور ساؤتھ کیرولائنا بھی خطرے میں۔ تمام عورتوں کو ایبارشن کا حق حاصل ہے، میریٹل ریپ بھی ریپ ہے، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ گہلوٹ کانگریس کی صدارتی دوڑ سے باہر، دگ وجے سنگھ اور ششی تھرور جمعے کو نامینیشن داخل کریں گے۔ زخمی جسپریت بمراہ ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر، محمد سمیع کو آسٹریلیا بھیجا جا سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا یوکرین کے 4 علاقوں کو کل باقاعدہ طور پر رشیا میں شامل کرنے کا اعلان کرے گا۔ حال ہی میں ان علاقوں میں کرائمیا کی طرح ریفرینڈم کرایا گیا تھا۔ امریکہ اور مغربی ملکوں نے اسے دھوکہ اور فریب قرار دے کر رد کر دیا ہے اور پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ رشیا کی مدد رکھنے والے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ 5 دنوں تک جاری ریفرینڈم میں عوام نے رشیا میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ ریفرینڈم ایسٹ یوکرین کے لوہانسک اور ڈونیٹسک اور ساؤتھ یوکرین کے خیرسون اور زاپوریژیہ میں ہوئے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعے کو کرملن میں ایک اہم تقریر کرتے ہوئے ان علاقوں کو رشیا میں شامل کرنے کا اعلان کریں گے۔ کرملن نے کنفرم کیا کہ جمعے کو ان علاقوں کو رشیا میں شامل کر لیا جائے گا۔ امریکہ نے کہا کہ وہ رشیا کے خلاف نئی پابندیاں لگائے گا۔ یورپی ملک بھی ایسا ہی قدم اٹھانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ جمعرات کو ان علاقوں میں لوگوں کو زبردستی گھروں سے اور دفتروں سے باہر نکالا گیا اور بندوق کی نال پر انہیں ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہیں اور یہ امن کے خلاف ہیں۔ معلوم ہوا کہ صدر پوٹین نے ایک حکم پر دستخط کرتے ہوئے مغربی ملکوں کے بعض ٹرکس کے رشیا کی زمین سے گزرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ رشیا کی حکومت نے کہا کہ اس کی گیس پائپ لائن کو نقصان دہشت گردی کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور کئی ملکوں کو تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے۔ رشیا نے اس الزام کو رد کر دیا کہ اس نے خود دھماکے کرائے ہیں اور پائپ لائن کو نقصان پہنچایا ہے۔ یورپی یونین نے بھی سبوتاژ کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ دونوں طرف سے اس کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ رشین نیوی کے جہازوں کو اس علاقے کے قریب دیکھا گیا جہاں پر پائپ لائن لیک ہوا ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ ایک چوتھا لیک بھی پایا گیا۔ سویڈن کے عہدیداروں نے اس چوتھے لیک کا پتہ لگایا۔ اس دوران رشیا نے کہا ہے کہ جس جگہ پائپ لائن لیک ہوئی ہے وہ امریکہ کے کنٹرول والے علاقے میں ہے۔ یہ پائپ لائن رشیا سے جرمنی جاتی تھی اور اس کے ذریعے یورپ کو گیس سپلائی کی جاتی تھی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے آبائی شہر پر میزائلوں سے حملے کیے گئے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں مسلسل دوسرے دن راکٹوں سے حملے کیے گئے۔ کم سے کم 4 راکٹ سرکاری عمارتوں کے قریب گرے۔ ایک دن پہلے بھی احتجاجیوں نے پارلیمنٹ پر ہلہ بولنے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر شیعہ عالم مقتدیٰ صدر کے حامی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ جمعرات کے راکٹ حملوں کے لیے کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کسی ہلاکت کی بھی خبر نہیں ہے۔ عراق میں پچھلے سال اکتوبر میں الیکشنز ہوئے تھے، تب سے سیاسی غیر یقینی پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے ملک میں کافی تناؤ ہے۔
नॉर्थ इराक में कुर्दों के ठिकानों पर ईरान के हमलों में 13 लोग हलाक हो गए। ईरानी ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि ये कुर्द बागी बदअमनी फैला रहे थे। इन ड्रोन हमलों में 10 अड्डों को निशाना बनाया गया। ये हमले इराक के कुर्दिस्तान इलाके के सुलेमानिया में हुए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन हमलों को कन्फर्म किया। ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े गए और 2 दर्जन सुसाइड ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने 4 शंबे को एरबिल में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि इस ड्रोन से खित्ते में अमरीकी सिपाहियों के लिए खतरे पैदा हो गए थे। एक बयान में अमरीकी फौज ने कहा कि हमलों के नतीजे में कोई सिपाही हलाक या जख्मी नहीं हुआ। इराक की वजारत खारजा ने भी इन हमलों की मजम्मत की है। जर्मनी ने हमलों के लिए ईरान पर तनकीद की। यह हमले एक ऐसे वक्त हुए हैं जब ईरान में एक कुर्द औरत महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। ईरान के कुर्दिस्तान इलाके के साकिर से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला अमीनी को तेहरान में ईरान की मोराल पुलिस ने लिबास से मुताल्लिक़ कायदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और हिरासत में उसकी मौत हुई थी। सऊदी अरब ने भी इराक़ी कुर्दिस्तान इलाके में ईरान के हमलों की मज़म्मत की है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फसादात को हवा देने के इल्ज़ाम में साबिक़ सदर अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फ़ायज़ा रफसंजानी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले फ़ायज़ा हाशमी ने कहा कि ईरानी हुकूमत पिछले कुछ दिनों के एहतजाज को फसाद और बगावत करार देते हुए उन्हें कुचल रही है। एक रेडियो स्टेशन ने फ़ायज़ा हाशमी के हवाले से कहा कि हकीकत यह है कि यह एहतजाज है। महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में मुजाहरों और गड़बड़ के दौरान 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ईरान एहतजाजियों के खिलाफ बेरहमाना तशद्दुद का इस्तेमाल कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कलमोर्ड ने कहा कि हमने वो तस्वीरें देखी हैं जिनमें ईरान में औरतों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में एहतजाज के तौर पर अपने बाल कटवाए और अपने हिजाब जलाए। एग्नेस कलमोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस से कहा है कि वो ईरान के रवैये की तहकीकात करे। उन्होंने कहा कि ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर लंबे अरसे से सख्ती की जा रही है और ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेबनान की पार्लियामेंट नए सदर को चुनने में नाकाम रही। मौजूदा सदर मिशेल ओन की मुद्दत 31 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली है। पार्लियामेंट स्पीकर नबील बेरी ने कहा कि वो इत्तेफाक राय होने के बाद एक और सेशन बुलाएंगे। जुमेरात के सेशन में उम्मीदवार मिशेल मुदात को 122 में से 36 अरकान पार्लियामेंट की तायद हासिल हुई, जबकि 60 से ज़्यादा एमपीज़ ने किसी को वोट नहीं दिया। लेबनान के दस्तूर के मुताबिक सदर ईसाई होते हैं, जबकि वज़ीर आज़म सुन्नी और पार्लियामेंट स्पीकर शिया होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफ़ीर ने वार्निंग दी है कि दहशतगर्द ग्रुपों के उभरने से अफगानिस्तान, उसके पड़ोसियों, खित्ते और पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरे पैदा हो गए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ईरानी सफ़ीर ज़हरा इरशादी ने अफगानिस्तान में दाइश आईसिस के दोबारा उभरने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने अफगानिस्तान को दाइश और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की पनाह गाह बनाने के खिलाफ खबरदार किया। तालिबान फोर्सेस ने काबुल में औरतों के एक एहतजाज को ख़त्म करने के लिए हवाई फायरिंग की। ईरान में मोरालिटी पुलिस की हिरासत में एक औरत की मौत पर यह एहतजाज किया गया। तकरीबन 25 औरतों ने काबुल में ईरानी सफारत खाने के सामने एहतजाज की कोशिश की। औरतें बैनर्स उठाए हुए थीं जिन पर लिखा था कि ईरान जाग गया है, अब हमारी बारी है, काबुल से ईरान तक डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। मगरबी किनारे के बीरा शहर में इस्राएली फौज के साथ झड़पों में एक फ़लस्तीनी नौजवान जख्मी हो गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। एक दिन पहले इसराइल की कार्रवाई के दौरान झड़पों में 4 फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक हुए थे। अमेरिका की फ्लोरिडा रियासत में तूफान इयान से ज़बरदस्त तबाही आई है। यह हालिया बरसों का सबसे ताकतवर तूफान है जो इस साहिल से टकराया है। तूफान के नतीजे में तेज़ बारिश हो रही है और सैलाब आ गया है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बिजली से महरूम हैं। ये कैटेगरी 4 का तूफान है जो मकामी वक्त के मुताबिक तीसरे पहर 3 बजे साहिल से टकराया। तूफान के असर में 240 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। अमरीकी एयर फोर्स भी इन कोशिशों में हिस्सा ले रही है। ओहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, कई नए इलाके पानी में डूब सकते हैं। तूफान अब जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ रहा है।
लौटते हैं इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के ताल्लुक से एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्हें 24 हफ्तों के हमल तक एबॉर्शन कराने का हक हासिल है और उनके इज़्दिवाजी मौक़िफ़ या मैरिटल स्टेटस की बुनियाद पर दस्तूर के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि शादीशुदा ज़िंदगी में मर्द की तरफ से ज़बरदस्ती यानी मैरिटल रेप को भी रेप में शुमार किया जाना चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा ना करने या करने के बारे में जो हक शादीशुदा औरत को हासिल होता है वही हक गैर शादीशुदा औरत को भी हासिल होना चाहिए। बेंच ने 23 अगस्त को इस केस में फैसला महफूज किया था। एक 25 साल की गैर शादीशुदा औरत ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए अपने 23 हफ्तों और 5 दिन के हमल को ज़ाया करने की इजाज़त मांगी थी और कहा था कि उसका हमल रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुकात के नतीजे में पैदा हुआ है, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वो गैर शादीशुदा है और उसके पार्टनर ने शादी करने से इनकार कर दिया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत कांग्रेस की सदारत की दौड़ से आखिरकार बाहर हो गए हैं। गहलोत ने राजस्थान में पेश आने वाले हालिया वाक़यात के लिए अखलाकी जिम्मेदारी कबूल की और सदारत की दौड़ से बाहर हो गए। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उनसे माफ़ी मांगी है और वो फैसला करेंगी कि क्या वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बरकरार रहेंगे। इस दौरान दिल्ली में अशोक गहलोत के मुखालिफ सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिले। इस दौरान झारखंड के साबिक रुकन असम्बली के एन त्रिपाठी का नाम सदारती दौड़ के नए उम्मीदवार की हैसियत से उभर कर सामने आ रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने मुकाबला करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर जुमे को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर भी मुकाबला कर रहे हैं, वो भी जुमे को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जुमे को नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उनकी पीठ में फ्रैक्चर आ गया है। बीसीसीआई अहदेदारों ने ये बात बताई। ये टूर्नामेंट अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। बताया गया कि बुमराह 6 महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। समझा जा रहा है कि बुमराह की जगह मोहम्मद शमी या दीपक चहल को रवाना किया जाएगा, जो रिजर्व खिलाड़ी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की एक अदालत के हुक्म पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस हुक्म में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिदायत दी गई थी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के अहाते का सर्वे करे। जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने मुतालिका फरीकों की दलीलें सुनने के बाद 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। सबसे पहले 30 अगस्त को हाईकोर्ट ने सर्वे पर स्टे ऑर्डर जारी किया था। केरला हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो हालिया हड़ताल के दौरान होने वाले नुकसानात के लिए कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 5 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा करे। पीएफआई ने मुल्क भर में तंजीम के कारकुनों और लीडर्स के खिलाफ एनआईए के धावों के खिलाफ एहतजाज के लिए 23 सितंबर को हड़ताल की थी, जिसके दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए थे। एक दिन पहले पीएफआई और उसकी झेली तंजीमों पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई थी। 12 घंटे की हड़ताल के दौरान कई बसों को नुकसान पहुंचाया गया था। जस्टिस ए.के. जयशंकर और मोहम्मद नियाज की बेंच ने हुक्म दिया कि 2 हफ्तों के अंदर ये रकम जमा कराई जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन के 4 इलाकों को कल रशिया में शामिल किया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दी पाबंदियों की धमकी। गैस पाइपलाइन लीक के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, रशिया ने लगाया इल्जाम। कहा आलमी तहकीकात होनी चाहिए। इराक के कुर्दिस्तान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हमले, ईरानी ओहदेदारों ने फायज रफसंजानी को गिरफ्तार कर लिया। लबनान की पार्लियामेंट ने सदर को चुनने में नाकाम। स्पीकर ने कहा इत्तेफाक राय के बाद एक और सेशन बुलाया जाएगा। फ्लोरिडा में तूफान इयान से जबरदस्त तबाही, 10 लाख लोग बिजली से महरूम। जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना भी खतरे में।
तमाम औरतों को एबॉर्शन का हक हासिल है, मैरिटल रेप भी रेप है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। गहलोत कांग्रेस की सदारती दौड़ से बाहर, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जुमे को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जख्मी जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।